Hello everyone. Today we'll discuss about the topic is incontinence. That is your revision part. Already two times we will cover this part first in your classes, another previous video recording. So this is your third time. Okay. So what is the incontinence? Incontinence means simply word incontinence, not the urine, not bowel. Okay, incontinence means unable to retain the natural discharges or the evacuation of urine or feces. So when we are not able to retain the any natural discharges, okay, whether it is the urine or whether it is a feces, that is the incontinence. जो हम क्या होते हैं retain नहीं कर पाते. For example, we are feeling to urge to avoid, but we can't go anywhere because we are sitting in a bus. Okay, so generally we are control the speeches by contract our pelvic floor muscles. Okay, but in an incontinence condition, if we are having an incontinence problem, then what will be happen? We can't hold the urine or retain the urine. Okay, so incontinence are generally are the two types, that is the urinary incontinence and the bowel incontinence. Okay, so in your syllabus, that is the BC nursing first year fundamental syllabus, that is urinary incontinence. Okay, so first of all, you should understood the anatomy of the bladder, the sphincter muscles. Okay, this is your bladder muscles. See, this is your bladder muscles. Inside of the bladder muscles, collection of the urine are there. Okay, this is your urine. This is the urine which I collect inside of the bladder. This is your bladder muscles, and these are sphincter muscles which are actually the hold the urine. Sorry, by control the bladder muscles. Okay, and these are the urethral openings. कि यहाँ से क्या होता है यूरिन फ्लो आउट होता है एंड दीज आर योर यूरेथ्रास, ट्यूबिंग ऑफ यूरेथ्रास, यहाँ जो क्या है एक वे है पास आउट होने का यूरिन का. ठीक है, so according to the anatomical review, the bladder means to store the urine. जहाँ आपका यूरिन स्टोर है, that is your bladder. Okay, यूरेथ्रा, the tube that allow urine to pass. एक तो ट्यूब्स होती हैं आपकी, यूरेथ्रल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो अलाउ करती हैं यूरिन को ब्लैडर से पास आउट होने में, एंड द यूरिन विल बी evacuate the out through the urethral opening. Okay, urethral sphincters, the muscles surrounding the urethra that hold the urine. ठीक है, ये क्या होती है, मसल्स होती हैं आपकी यूरेथ्रल के सराउंडिंग एरिया में, जो ये करती हैं होल्ड करके रखते हैं यूरिन को. ठीक है, the brain signal are the key to coordinate the function of these anatomical structures. जो हमारा brain signal होता है, as we are know that हमारे all over the body में क्या न्यूरॉन present है, तो क्या करते हैं हमारे brain को signal देते हैं कि whatever जो भी हमारी body में internal functioning होती है, ठीक है, उसका signal कहाँ आता है, brain में जाता है हमारे. ठीक है, और फिर हमारा brain क्या करता है, indicate करता है कि हमें means क्या functioning करनी चाहिए, हमारी body में क्या है, voluntary मूवमेंट होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल फीचर्स के लिए है या फिर यूरिन के लिए है. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग टू ब्लैडर, तो एग्जैक्टली ब्लैडर में होता क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल. ठीक है, ये क्या होता है, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कैसे कंट्रोल होता है, द नर्व कमिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू डायरेक्टली इनटू ब्लैडर. नर्व क्या होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है डायरेक्टली ब्लैडर में जाती है. जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो इन्हीं नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड इनटू द ब्रेन कि ब्लैडर क्या हो चुका है, फुल हो चुका है. तो जो सेंस में फील होता है, जो सिग्नल जाता है, वो क्या होता है, ब्रेन में जाता है इन नर्व्स के थ्रू. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री कंट्रोल टू चूज व्हेन टू अवॉइड. अब जब हमारे ब्रेन में चला गया सिग्नल, तो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस होता है. ठीक है, वो हमारा क्या करता है, वॉलेंट्री कंट्रोल करता है कि हमें कब करना है, हमें यूरिन अवॉइड कब करना है. जैसे हमें फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड यू आर फीलिंग ऑफ अर्ज टू अवॉइड अ सेंसेशन ऑफ फुल ऑफ ब्लैडर, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप जैसे आपको ब्लैडर फुल हुआ आपने में एम्प्टी कर दिया. आपके माइंड में क्या है कि यू हैव टू अवॉइड द यूरिन जब आप क्या करोगे, वॉशरूम में पहुंच जाओगे. ठीक है, अंडरस्टूड, दिस इज योर वॉलेंट्री कंट्रोल to
चूज व्हेन टू वॉइड, कि आपको वॉलंटरी करोगे कि आपको कब वॉइड करना है, तब क्या करते हो, तब तक होल्ड करके रखते हो अपने यूरिन को, ठीक है। तो नॉर्मल वॉइडिंग प्रोसेस क्या होती है आपकी, दिस इज द ब्लैडर, तो क्या होता है, फिल हो रहा है, फिलिंग ऑफ ब्लैडर। देन जब वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है, देन वी हैव टू सेंस द वॉइड ऑफ यूरिन, ठीक है। नॉर्मली हमारी क्या डिजायर होती है यूरिन वॉइड करने की, ठीक है, और हमारा ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है, एम्प्टी फेज में आ जाता है, देन अगेन हमारा ब्लैडर क्या होता है, फिल अप होता है। तो दिस इज योर वॉइडिंग साइकिल, filling of the bladder, the filling of the full of sensation and the voiding of the urine, and the normal desire of the voiding of the urine, and afterwards the emptying of bladder, and again the bladder will be filled by the urine. Okay. Now, what is the definition of the bladder incontinence and urinary incontinence? In that, urinary incontinence means there is a loss of bladder control, which lead to the incontinence pass of urine. जब हमारे bladder में control नहीं पाता, हम voluntary control नहीं कर पाते bladder को, और incontinence से क्या होता है, bladder से urine out होता है, that means bladder incontinence या फिर urine incontinence बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो understood this one ना? When that means urine continence means there is a loss of bladder control, जो हमारे bladder में control नहीं होता, voluntary control नहीं होता हमारे bladder में, हम loss of bladder control, जिसकी वजह से क्या होता है, incontinence passing of urine, continue क्या होता है, urine pass होता है, वैसे और dribbling में pass हो रहा हो, ठीक है, मतलब flow में pass हो रहा हो। The types of incontinence is, there are the several type of incontinence of bladder, in that the stress incontinence. Stress incontinence कब होता है, जब आपकी increase the abdomen pressure occur during the certain activity like coughing, sneezing, laughing, ठीक है। अगर आपका abdomen pressure क्या होता है, increase होता है, जैसे आप कफ कर रहे हो, स्नीज कर रहे हो या लाफ कर रहे हो, तो आपने देखा होगा अगर एक्सेसिव कफिंग होती है, एक्सेसिव स्नीजिंग होती है, एक्सेसिव लाफिंग होती है, तो हमारा क्या होता है, एब्डोमेन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर ब्लैडर में पड़ता है, क्या होता है, पेशेंट को पर्सन को यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है, इज कॉलिंग अ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इनमें से कोई भी एक्टिविटी की वजह से ब्लैडर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो प्रेशर क्या करता है, यूट्रस, सॉरी नॉट यूट्रस, या ब्लैडर में प्रेशराइज करता है, जिससे क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में इनएबिलिटी टू होल्ड द फ्लो ऑफ यूरिन व्हेन फीलिंग टू अर्ज द वॉइड, ठीक है। जब हमें ये होता है वॉइडिंग की फीलिंग होती है, तो हम क्या करते हैं जनरली, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या, आप बस में बैठ रहे हो और आपको फीलिंग हो गया, सेंसेशन हो टू वॉइड द यूरिन, कि मेरा ब्लैडर फुल हो गया, मुझे वॉइड करना है, बट यू हैव टू कंट्रोल योर ब्लैडर by your sphincter. You have to constrict your pelvic floor muscle. Okay, by that we have to control the blood, hold the urine. But इस कंडीशन में क्या होता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस में आपको अर्ज तो होती है, लेकिन हम वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं कर पाते और आपका यूरिन पास आउट हो जाता है, इसे बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। So there are generally three. The first one overflow. Overflow का मतलब है कि जो ब्लैडर होता है वो एम्प्टी नहीं हो पाता है, ठीक है, बार बार यूरिन होता है, बार बार यूरिन पास होता है, हमें लगता है हमारा ब्लैडर एम्प्टी नहीं है, बार बार हम नाइट टाइम में, डे टाइम में 2 और 3 टाइम करते हैं, यूरिनेशन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज रिलैक्स पेल्विक फ्लोर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो पेल्विक फ्लोर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, इंक्रीज होता है हमारा एब्डोमेन प्रेशर, जिससे अपने लव करते हैं, कफ करते हैं, या फिर एक्सेसिव कफिंग होती है अगर, लाफिंग होती है अगर, या फिर थर्ड वन इज स्नीजिंग होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अर्ज का मतलब होता है जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि आप, मैंने आपको कहा जो सीएनएस होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो क्या करता है, इंडिकेट करता है वॉलेंट्री कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हमें कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बार बार क्या होती है, अर्ज होती है यूरिन वॉइड करने की, ठीक है। Then the mix incontinence combined, combination of the both stress incontinence and urge incontinence, both combination क्या होता है, mix incontinence होता है। Overflow, already I have explained you that retention of the urine, overflow of the small amount of urine, ठीक है, कि बार बार क्या होता है कि हम बार बार यूरिन जाते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन जो होता है वो रिटेन रहता है ब्लैडर में, और हमें बार बार क्या होता है, यूरिन पास होता रहता है, क्योंकि ब्लैडर कभी एम्प्टी नहीं हो पाता है। Then urgency is sudden or desire to void. Generally क्या होता है, suddenly हमें urgency होती है कि नहीं हमें void करना है, हमें void करना है, that is urgency. कभी भी हमें लगता है कि नहीं हमें जाना है,
Frequency is passing of urine several or more days being awake from the sleep or more than once a night to avoid frequency of urine, यानी कि बार बार हम जा रहे हैं, जैसे नाइट में 2-3 टाइम जा रहा है, डे में 2-3 टाइम जा रहा है, ठीक है। अर्जेंसी का मतलब होता है सडनली हमें डिजायर होती है कि हमें अवॉइड करना है यूरिन, चाहे हमारा ब्लैडर फुल ना हो, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, यू हैव टू अवॉइड द यूरिन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब हम बार बार जाते ही रहते हैं, सुबह शाम नाइट, ओके। Then what is the urinary incontinence? What is the stress continence? I hope you understand what is the difference between a urinary incontinence और stress continence. Urinary incontinence में जब बार बार क्या होता है, यूरिन में पास आउट होता रहता है, ठीक है, चाहे वो ओवरफ्लो की वजह से हो रहा है या फिर हमारे ब्लैडर स्पेंचर्स लूज हो गए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है जब कोई ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें पैल्विक फ्लोर की मसल क्या होती है, रिलैक्स होती है, हमारा एब्डोमेन प्रेशर इंक्रीज होता है, और क्या होता है कोई एक्टिविटीज करते हैं, लाफिंग करते हैं, कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, तो एट द टाइम ब्लैडर से यूरिन पास होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द etiology behind the bladder incontinence? In that the stress incontinence में क्या होता है, weaken of the urethral sphincter the pelvic floor muscles, हमारी pelvic floor की मसल्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, या फिर हमारे यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, वो लूज हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, ग्रेविड यूट्रस जब बेबी बढ़ता है ना, तो ग्रेविड यूट्रस बोलते हैं, तो ठीक है, ग्रेविड यूट्रस इंक्रीज होने की वजह से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने की वजह से प्रेशर, जो बेबी का वेट इंक्रीज हो रहा है, जब जो आपका यूट्रस लार्ज हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रेशराइज करता है ब्लैडर में, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस होता है। देन चाइल्ड बर्थ एज में अगर कॉन्टिन्यूस चाइल्ड बर्थिंग हो रही है, जिसकी वजह से pelvic फ्लोर के जो लिगामेंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। एज आल्सो अ फैक्टर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। देन ओबेसिटी आल्सो, मेनोपॉज, menopausal women, especially those are having a history of the vaginal delivery, the surgical procedures, okay, in that the hysterectomy means complete removal of the uterus, okay. Now the pathophysiology. What is the pathophysiology behind the bladder incontinence? That is, incontinence the bladder occur when those pelvic muscles that involve the urination get the traumatized, or either the overstretch or the tear, or that lead to weaken of the muscle. अब इनकॉन्टिनेंस ऑफ ब्लैडर एक्चुअली कब होता है, जब हमारी जो pelvic floor की मसल्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं यूरिनेशन के लिए, उनमें कोई ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है, वो इंजरी हो गई, टेयर हो गया, या वो ओवर स्ट्रेच हो गई, जैसे बार बार, जैसे हम कह सकते हैं कि जब सेक्सुअल एक्टिविटीज होने की वजह से होती हैं, ओवर सेक्सुअल एक्टिविटीज होने की वजह से होती हैं, या फिर अगर मदर बार बार ब्रेड डाउन प्रोसेस करे कॉन्टिन्यूसली विदाउट टेकिंग द गैप बिटवीन टू चाइल्ड, आपने सुना होगा कि टू चाइल्ड्स के बीच में मिनिमम 3 ईयर का गैप होना चाहिए, सो दैट कि हमारी बॉडी को अपनी रीग्रोथ करने के लिए, दोबारा से प्रिपेयर होने के लिए, इट टेक टाइम, ठीक है। अगर मदर कंटिन्यू ईच ईयर बार बार डिलीवर करती है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी pelvic floor की मसल्स हैं, उसके जो लिगामेंट्स हैं वो लूज हो जाएंगे, ठीक है, एंड लीड टू वीकनेस ऑफ द मसल, जिसके होते हैं मसल्स वीकनेस होगी और इनकॉन्टिनेंस होगा। देन फॉर एग्जांपल, अगर pelvic floor की जो मसल्स हैं वो ट्रॉमा हुआ है, इसमें टीयर हुआ है, या ओवर स्ट्रेच हुई है, बार बार स्ट्रेच होने की वजह से उनमें वीकनेस आ गई, अब क्या होता है, एट द टाइम गोज बाय द मसल बिकम द वीकर, जब मसल वीक हो जाती है अंटिल एट द सर्टेन पॉइंट दे कैन नॉट बी सपोर्ट द ब्लैडर, तो फिर एक पॉइंट आता है जब तक तो ब्लैडर का सपोर्ट नहीं कर पाते, जैसे फॉर एग्जांपल यंग एज जब मदर ने ब्रेड डाउन प्रोसेस किया एंड जब वो 35 क्रॉस कर गई, तो क्या हमारी एजिंग फैक्टर भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में स्लो हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, ब्लैडर क्या करता है, वो ब्लैडर को सपोर्ट नहीं कर पाती और यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ हाई प्रेशर इन द एब्डोमेन, जब भी कोई हाई प्रेशर आता है एब्डोमेन में, जैसे कफ हुआ, लाफ हुआ, स्नीजिंग हुआ, ठीक है, तो ऑलरेडी आपके pelvic floor की मसल्स तो वीक है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर मसल्स वीक है तो वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो जब भी आप कोई एक्टिविटीज करोगे, जैसे कफ हो गया, स्नीजिंग हो गया, लिफ्टिंग करोगे, पुशअप करोगे, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, फिर पुशिंग कर रहे हो हैवी थिंग्स को, तो इमीडिएटली क्या होगा, ब्लैडर से यूरिन पास हो जाएगा, ठीक है। यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉज द इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, और क्या होगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स की वजह से इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होगा, अंडरस्टूड। सो इन दैट पहले क्या था, किसी भी ट्रॉमा, जैसे किसी भी टीयर के ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ pelvic floor मसल्स होने की वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं, वीक होने की वजह से वो ब्लैडर को सपोर्ट नहीं कर पाती, यूरिन को प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर पाती, और जब भी हम कभी, जब एब्डोमेन प्रेशर इंक्रीज होता है, तो किसकी वजह से, किसी भी एक्टिविटी करने की वजह से, जैसे हम कफ कर रहे हैं, बार बार कफ हो रहा है, स्नीज हो रहा है, या कोई ऐसी हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं जिससे हमारा डायरेक्टली एब्डोमेन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, यूरिन से ऑटोमेटिकली प्रेशर
सॉरी यूरिन से ऑटोमेटिकली यूरिन सॉरी ब्लैडर से ऑटोमेटिकली यूरिन आउट हो जाता है, ठीक है। द क्लिनिकल फीचर्स इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में जैसे कफ हुआ, स्नीज हुआ, लाफिंग के टाइम पे, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्टिव, विगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, हैवी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अगर फॉर लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग करते हो तो तुम्हें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। नाउ अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अगर अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अगर अर्ज का मतलब बार बार हमें फीलिंग होती है कि हमें यूरिन जाना है, यूरिन जाना है। तो फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन इन अ डे एट अ नाइट टाइम, बार बार आप यूरिन डे में भी जा रहे हो, नाइट टाइम में भी जा रहे हो, ठीक है। सडन यूरिनेशन, यूरिनरी अर्ज, सडनली आपको लगता है कि नहीं आपको यूरिन जाना है, तो दोनों ही चीजें क्या होती है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस मतलब यानी कि आपको अर्ज होती है कि आपको यूरिन पास करना है, ठीक है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस अगर, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस यानी जब ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पाता तो बार बार आपको लगता है कि आपको ब्लैडर एम्प्टी नहीं है, आपको यूरिन जाना चाहिए, जैसे इनवैलिड और टू अवॉइड द व्हेन द अर्ज इज फेल्ट, बार बार आपको लगता है कि यूरिन जाना चाहिए, यूरिन जाना चाहिए। यूरिन आपको क्या होती है, वॉइडिंग के बाद ट्रिपलिंग में होती है, लेकिन फिर भी आपको क्या होती है, बार बार अर्ज होती है ब्लैडर एम्प्टी करने की, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लैडर कभी भी एम्प्टी नहीं हो पाता। यूरिन इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि बार बार आप यूरिन पास आउट करते हैं, ईच हाफ एन आवर में, ईच 1 आवर में आपको पता है यूरिन पास करना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ब्लैडर की कैपेसिटी 200 ml है यूरिन होल्ड करने की, तो 50 ml के बाद ही आप बार बार यूरिन पास करने चले जाते हो। और ओवरफ्लो में क्या होता है कि 100 ml तो आपको जैसा लगता है ऐसे आपको फॉर एग्जांपल ब्लैडर की कैपेसिटी 200 ml है और ब्लैडर ने क्या आप यूरिन पास करने गया तो 200 ml उसने पास नहीं किया, उसने 100 ml ही पास किया। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। देखो यू अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि एम्प्टी पूरा होता है ब्लैडर, लेकिन वो क्या करता है शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर पाता है यूरिन, फिर पास हो जाता है यूरिन, ठीक है, क्योंकि स्पीचेस लूज हो गए हैं। और फ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या हो रहा है कि वो जो ब्लैडर है वो क्या होता है एम्प्टी नहीं कर पा रहा है, पूरा ब्लैडर क्या होता है एम्प्टी नहीं हो पा रहा है जब वो वॉइड कर रहा है, तो ठीक है। There are the three type of incontinence: stress incontinence, urge incontinence, and next one is the overflow incontinence. और देखो stress incontinence पीछे मतलब सो जाती है, तो जब हम को भी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से एब्डोमेन प्रेशर इंक्रीज होता है तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। अर्ज का मतलब है जब बार बार अर्ज होता है, ईच हाफ एन आवर आप वॉशरूम जा रहे हो, नाइट में ईच 1 आवर में आप वॉशरूम जा रहे हो। ओवरफ्लो का मतलब है कि आपको क्या ऐसा लगता है कि आपका ना एम्प्टी जब आपका ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं हो रहा है, आप बार बार जा रहे हो तो आपका एम्प्टी हो ही नहीं रहा है। अर्ज में एम्प्टी होता है लेकिन दोबारा से फिल हो जाता है, ठीक है। और ओवरफ्लो में एम्प्टी नहीं होता है, तो अगर ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन मतलब आप अवॉइड करने जाते हो तो ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली पेल्विक फ्लोर मसल्स डिक्रीज होने की, मसल्स वीक होने की वजह से, स्पिंचर्स वीक होने की वजह से होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, जनरली हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं इसमें, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द पेल्विक मसल्स लैप्स एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, स्पेशली द फीमेल पेशेंट who are having a history of the incontinence, means they having a history of the vagina. You have to take the history regarding the obstacle, like how many times they are delivered by the per vagina, देन यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, ठीक है, इन्फेक्शन देखने के लिए। मे बी यूटीआई में भी मदर को और पर्सन को कहते हैं फीलिंग होती है यूरिन कॉन्टिनेंस की। पैट टेस्ट, पैट टेस्ट क्या होता है, इसमें हम टू वे में करते हैं, तो 1 आवर पैट टेस्ट करते हैं, हम 24 आवर पैट टेस्ट करते हैं। 1 आवर पैट टेस्ट में क्या करते हैं, हम पेशेंट को 500 ml यूरिन, सॉरी 500 ml लिक्विड हम उसे देते हैं पीने के लिए ओरली, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं 1 आवर्स में देखते हैं कि 1 आवर्स में उसको पैड अप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। फिर देखते हैं कि 1 आवर में उतना कितना यूरिन पास हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर उसे 1 आवर में 1.8 ग्राम से ज्यादा यूरिन पैड का वेट है तो इसका मतलब पॉजिटिव यूरिन पैड टेस्ट है, ठीक है। सेम लाइक 24 आवर्स में हम क्या करते हैं कि सेम हम क्या करते हैं पेशेंट को, हम इसमें 24 आवर्स में क्या करते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो भी वो लेता है ड्रिंकिंग वाटर लेता है, ठीक है। इवनिंग में जब 24 आवर्स यानी आज के 10 बजे से कल के 10 बजे तक हम देखेंगे, तो आज फॉर एग्जांपल आज मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक से हम कल के 10 ओ क्लॉक में हमने देखा कि 10 ओ क्लॉक में उसका यूरिन पैड कितना फील हुआ, तो यूरिन पैड का वेट जो है वो 8 ग्राम से ज्यादा होता है, ठीक है। सॉरी 1 ग्राम एक्चुअली 8 केजी से ज्यादा होता है, तो that is a positive urine pap test. Okay, measure the post voidal residual volume by the bladder ultrasound यूरेथ्रल कैथेटर, ठीक है। तो हम मेजर कर सकते हैं कि ब्लैडर एम्प्टी होने के बाद कितना वॉल्यूम उसमें मींस
रिटेन रह गया तो हम यूरेथ्रल कैथेटर के थ्रू भी देख सकते हैं और अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उसे हम देखते हैं कि ब्लैडर एम्प्टी हुआ है नहीं हुआ पूरा। यूरोडायनामिक स्टडी, इसमें होता है यूरोफ्लोमेट्री देखते हैं, यूरोफ्लोमेट्री में फ्लो देखते हैं यूरिन का, ठीक है, और वॉल्यूम देखा जाता है। सिस्टोमेट्री, सिस्टोमेट्री में ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी देख कितना वो कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है, उसकी मसल्स कितना कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है। सिस्टोग्राम टू विजुलाइज द ब्लैडर, सिस्टोग्राम में क्या करते हैं हम विजुलाइज करते हैं ब्लैडर को, एक पतला सा कैथेटर डालते हैं जिसके थ्रू हम विजुलाइज करते हैं ब्लैडर को टू आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी में कहते हैं माइक्रोस्कोपी, टेलीस्कोपी को थ्रू, नॉट टेलीस्कोपी, एक्चुअली लैप्रोस्कोपी के थ्रू एक तो लैप्रोस्कोप इंसर्ट किया जाता है ब्लैडर में, और टू फाइंड उसमें कहते हैं ब्लैडर की मींस ब्लैडर को विजुलाइज किया जाता है कि कोई ट्यूमर तो नहीं है, स्टोन तो नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकॉन्टिन्यूस यूरिन हो रही है। नाउ द मैनेजमेंट, सो हाउ यू विल मैनेज इन द मेडिकल मैनेजमेंट, you have to advise to the patient that take the anticholinergic, cholinergic करते हैं acetylcholine होते हैं जो क्या करते हैं ब्रेन में impulses राइज करते हैं, ठीक है, और एक्चुअली ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं एक्टिव मेडिकेशन टू काम एंड द ओवर एक्टिंग ब्लैडर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उनसे क्या होता है कुछ न्यूरॉन्स जो ट्रांसमिटेड होते हैं ब्लैडर में जो इंडिकेट करते हैं ब्रेन को कि ब्लैडर फिल हो गया, ठीक है। तो बार बार अगर वो इंडिकेट कर रहे हैं तो ये भी क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब बार बार क्या होता है इम्पल्सेस राइज हो रही है, ठीक है, तो हम उसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं जिससे क्या होता है न्यूरॉन्स जो होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो काम हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। एंटी डिप्रेशन एजेंट देते हैं हम, इमिप्रामाइन देते हैं, ड्यूलोजैटिन देते हैं, टॉपिकल एस्ट्रोजन देते हैं हम, अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट देते हैं। अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक जो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, ये करते हैं, ये भी करते हैं इम्पल्सेस राइज करते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन बढ़ाते हैं, ठीक है। एगोनिस्ट का मतलब होता है किसी चीज की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देना, सॉरी एंटागोनिस्ट का मतलब होता है किसी चीज की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देना, एगोनिस्ट मतलब होता है किसी चीज की एक्टिविटी को बढ़ा देना। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हमको मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड होके एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट का वर्क करती है, ठीक है। एंटागोनिस्ट मतलब किसी चीज की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देना, एगोनिस्ट मतलब उसको बढ़ा देना, ठीक है। देन फेनाइल प्रोपेनोमाइन, ठीक है, ये मेडिसिन, so these are the medication management for the patient who having the incontinence of problems। इसके अलावा कुछ हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, जैसे क्या करते हैं हम एक आर्टिफिशियल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, जिसको करते हैं कंट्रोल करके रखते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। इसके अलावा कुछ पेस्ट्रीज होती हैं हमारी, ठीक है, जो हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो सके यूरिन कंट्रोल हो सके। देन स्लिंग पैस्ट्री, स्लिंग पैस्ट्री भी क्या करता है प्लेसमेंट ऑफ द मिनी ऑक्सिलिंग सपोर्ट टू द यूरेथ्रल एंड प्रिवेंट द यूरिनरी लीकेज, यूरिनरी लीकेज से क्या होता है प्रिवेंट करता है, जैसे किसी को ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन हो रही है। सो इन दैट व्हाट इज द नर्सिंग डायग्नोसिस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू द वीक pelvic floor muscles, okay। So student, you have to note down this three nursing diagnoses. On the basis of three nursing diagnoses, you have to make the NCP, and next week you have to submit this NCP by mail, okay. So in that we have to at least the 5 to 6 interventions you have to advise in that, okay. So stress incontinence related to the weak pelvic muscles, impaired the skin integrity related to the constant contact of the urine with peripheral tissue, and infective coughing related to inability to control the urine leakage. So these are the three nursing diagnoses. The nursing management is, first of all, you have to advise the patient to do the pelvic floor exercises, because the pelvic floor exercises can help to strengthen the muscles of the pelvic floor, improve the bladder stability, help to suppress the feeling of the urgency, okay. Next one is bladder training. So you have to give the bladder training schedule to voiding at a set time duration, आपको बोलोगे एक set time duration आप करोगे, उसी टाइम पर आपको void करना है urine। Active use of the muscles to prevent the urine loss, आपको ये मतलब muscle active करनी है so that यूरिन लॉस ना हो सके। कीप ओन इनपुट एंड आउटपुट, आपको खुद से बनाना है आपने मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कितना इनपुट किया, कितना आपने
मीन्स कितना आपने वाटर ड्रिंक किया है, को भी ऐसे लिक्विड आपने कितना लिया है, आपकी बॉडी से वो कितना आउट हुआ है. सो यू हैव टू मेंटेन योर ओन इनपुट आउटपुट चार्ट. एज वेल आप ब्लैडर ट्रेनिंग दे सकते हो, एक शेड्यूल बना सकते हो कि आपको इतने टाइम अवॉइड करना है, ठीक है. और एक्टिव करना है आपको यूज ऑफ द मसल टू प्रिवेंट द यूरिन लॉस. ओके, नाउ द बिहेवियर मॉडिफिकेशन में ड्रिंक लेस 5 ग्लास पर डे. तो आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपको यूरिन ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ड्रिंक 5 glass, drink less than 5 glass per day. Okay, stop drinking after dinner. आप खाने के एकदम बाद आपको पानी नहीं पीना है. Elevate the legs especially at the time of the night, because बार बार आपको पता है नाइट को यूरिन ज्यादा, तो स्लीपिंग प्रोग्रेस, स्लीपिंग ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होती हैं. देन नेक्स्ट वन इज द एलिवेट द लेग्स. लेगन को एलिवेट करना है. टाइम वॉइडिंग, टाइमली आपको वॉइड करना है. रेगुलेट द पेल्विक फ्लो एक्सरसाइजेस, और आपको पेल्विक फ्लो एक्सरसाइजेस रेगुलेट करनी है. So don't be forget how to do the pelvic floor exercises. इसको हम बोलते हैं कीगल एक्सरसाइजेस, कि मैन और वुमन दोनों कर सकते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो कामली सिटिंग फ्लोर में बैठ जाए, ठीक है. एंड देन फाइंड योर pelvic floor muscles. Squeeze your pelvic floor muscle as hard as you can. Hold them, squeeze 3 to 5 seconds and then relax for 5 seconds. Do set the repetitions, squeeze, start 5 repetitions, squeeze, hold and relax. Increasing glance intensity or repetition every couple of days. Perform the Kegel exercise 2 to 4 days during the day. Okay, so इसका मतलब क्या है, देखो बताती हूँ आपको. Kegel exercise में क्या करता है, पेशेंट को बोलते हैं कि वो किसी भी फ्लोर में बैठ जाए, ठीक है. बैठने के बाद वो, ओके हाँ, बैठने से पहले वो अपने यूरिन को एम्प्टी करके आए, ठीक है. ब्लैडर उसका एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है. फिर एम्प्टी करने के बाद वो बैठे, और उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसे बोलो, पेशेंट को आप बोलोगे कि नाउ यू हैव टू फील लाइक, जैसे आपको अर्ज की फीलिंग होती है, वॉर्डिंग की फीलिंग होती है ना, तो आप क्या करते हो, अपने पैलेट फ्लो मसल को ऐसे इस तरह से कॉन्स्ट्रैक्ट कर लेते हो, कंस्ट्रिक्ट कर लेते हो, होल्ड कर लेते हो, ठीक है. तो वैसे आपको फील करना है कि आपको यूरिन पास हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो, पैलेट फ्लोर मसल्स को होल्ड कर रहे हो. आप क्या करोगे, आप उसे स्क्वीज कर लोगे. स्क्वीज यानी आपने कंस्ट्रिक्ट कर लिया है. कंस्ट्रिक्ट करने के आप होल्ड करोगे. कितना होल्ड करोगे, 3 to 5 सेकंड के लिए होल्ड करोगे. और आपको अगर टाइम की प्रॉब्लम है तो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. फिर आप उसे रिलैक्स कर दो. ऐसा आप 5 टाइम करोगे, ठीक है. और दिन में 3 बार रिपीट करना है. 5 टाइम, ठीक है. पहले क्या करना है, स्क्विज करना है पेल्विक फ्लोर की मसल्स को. यू फील लाइक कि आपको अर्ज फीलिंग हो रही है या वॉइडिंग की फीलिंग हो रही है. फिर आपने होल्ड करके रखना है उसे 10, आप काउंटिंग करो 10 तक की, ठीक है. देन आपको दोबारा से उसे रिलैक्स करना है, ठीक है. अंडरस्टूड. So the exercises are help to strengthen the pelvic floor muscles, ठीक है. और अगर जैसे ओल्ड एज की एज है, या फिर जिन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जनरली वी हैव टू एडवाइस टू पेशेंट टू डू द सर्जिकल प्रोसेस. Okay, so thank you so much. If you have any doubt, you will free to ask. Okay, thank you.